ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਾਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ LGBT ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ LGBT ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਵੈ ਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ सहायता ਲਈ ਇੱਕ फंड रेजिंग प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया। हमारा कॉलेज जो प्राइड मार्च करा रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं प्राइड मंथ की हिस्ट्री को। उसी वजह से हमने जैसे यहाँ पे रेनबो थीम्ड केक्स हैं, हम वो बांट रहे हैं सबको, और ये जो स्टॉल से ये सारे जो पैसे जा रहे हैं ये सब भी चैरिटी को जा रहे हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं खुद से तैयारी कर पाते उनकी, तो उनकी तैयारी हम करवाते हैं फ्री में, उनको कोचिंग देते हैं, तो उसके लिए ये सारे पैसे जा रहे हैं उस सब के लिए। दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे ये प्राइड वाक क्या है और जो आप बोल रहे हैं अभी इसका के मकसद क्या होता है, मतलब बेसिकली व्हाट इज दिस? बेसिकली प्राइड मतलब कि जैसे हम जो भी हैं, ज़रूरी नहीं है हम पुरुष हैं, नारी हैं, हमें खुद पर गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। इसका यही मतलब है, प्राइड मतलब गर्व करना। जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें नर या नारी इन दो बक्सों में ही रहना है। इसका मतलब है प्राइड। तो इसके लिए समाज में जैसे इसको कैसे बदला जा रहा है, अभी कानून क्या कह रहा है इसके बारे में? कानून तो देखिए, पहले हमारे भारत में थोड़ा वक्त लगा है इस मूवमेंट को आने में, तो पहले इतना नहीं था, लेकिन हाँ जैसे 1-2 साल पहले नवतेज सिंह जौहर की जैसे आई एक, तो उसमें क्या था, एक सेक्शन था 377, तो उसको कहते हैं कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। मतलब पहले ये जुर्म होता था, अब ये जुर्म नहीं है, अब ये नॉर्मल है। अगर कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, कंसेंट है, कंसेंट दोनों तरफ से मंजूरी है, तो ये फिर अभी कोई क्राइम नहीं है, अदरवाइज इट इज़। So the event is related to Pride History Month, which is on October. So this event is for all the queer people of Rajiv Gandhi National University of Law, and we are proud queer, proud and out. Thank you. What do you think about the generation and the people, society? Society is accepting, Okay. and as we are evolving, we should accept. Yeah. It's not a taboo right now. What do you think, guys? Society is progressive. What is the theme of this program and why you are organizing this program? Okay, so we are organizing this Pride March here in RGN today because it's the LGBTQIA++ History Month. So we want to remember all those who have played an important role in this continually progressive march that we are on for getting not just equal rights but an equal say for the LGBTQ people here. So in remembrance of all those and to celebrate everyone here, we are organizing this march today here in RGNUL. And who's participating here? This event is open to like everyone who's part of the community here in the campus, like the students, the faculty, and even the non-student like support staff as well. So it's open irrespective of their gender, sexual identity, because the collective history is everyone's history, so everyone's a part of it, considering here at RGNUL. You can simply say this is gender equality and the human rights. Yeah, and much more than the celebration of individuals, because the human aspect gets lost most of the times when you talk about these issues. It's only the legal aspect, rights and so on. But here we also celebrate the human aspects of being somebody from an alternate gender identity. जी बेटा, आज इतना अच्छा आपने कार्यक्रम किया, हम तो उसको मानते हैं भी सब एक है, ह्यूमन की बात करते हैं, वन ह्यूमन। तो आज इस कार्यक्रम का मकसद क्या था, किन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें? तो जो अक्टूबर का महीना है वो LGBTQ हिस्ट्री मंथ है। यहाँ पे हम LGBTQ कम्युनिटी की हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। हर जेंडर, हर सेक्सुअलिटी इक्वल है। इसी मोटिव से हमारे कॉलेज के 3 सेंटर्स RGNUL लीगल एड, IDIA और प्राइड RGNUL ने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। आज RGNUL की फर्स्ट प्राइड मार्च हुई है, जो हिस्टोरिक इवेंट है, बिकॉज पहले कॉलेज में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग के पहले बहुत सारे फंक्शंस थे, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स थे, जैसे मेहंदी लगाना था, टैटू प्रिंटिंग था, कपकेक सेल हुए। ये सारे फंड रेजर्स थे LGBTQ कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। उसके बाद RGNUL लीगल एड ने प्राइड मार्च ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हम पूरे कॉलेज में प्राइड फ्लैग लेके गए थे, इंडिकेटिंग कि सब बराबर हैं और सबको उनके राइट्स मिलने चाहिए। बेटा, आप कैसे समझते हो, जैसे अभी कल न्यूज़ थी भी एक कंट्री में सिर्फ एक
वाल कट करने की हेयर कट करने की वजह से गोली मार दी लड़की को। कितना जी। समझते हो कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है, जहाँ कितना काम करने की ज़रूरत है? सर अवेयरनेस की तो बहुत कमी है। इंडिया मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, पर अभी भी बहुत सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो LGBTQ तो क्या विमेन को भी उनके राइट्स नहीं देते हैं। तो इसीलिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स इंपॉर्टेंट है। हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी लेवल से, फिर सिटी लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, तभी ग्लोबली इफेक्ट पड़ पाएगा कोई। जी बेटा, आप इक्वलिटी की बात करते हो, तो उसके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे यूथ को, जहाँ जो हमसे बड़े हैं, जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलीजन पक्ष भी जुड़ा हुआ है और हमारी भाषाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्या मैसेज दोगे इसके लिए? सर मेरा मैसेज ये है कि हमें सबको रिस्पेक्ट, सबको सम्मान देने की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान तो एक ही है, अब चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई LGBTQ कम्युनिटी का हो। जब जानवर प्यार से रह सकते हैं और इंसान में इतनी अक्ल है, इंसान के पास दिमाग है, तो हम तो साथ में रह ही सकते हैं। तो यही मैसेज है कि इक्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਾਰਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨੀਏ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्या समझते हो आप, कितना लोग अवेयर हैं, नई जनरेशन कितनी अवेयर है? आप तो एक हाईली एजुकेटेड इंस्टीट्यूट में हो, यहाँ तो बच्चे थोड़ा जानते हुए, लेकिन अगर स्कूल में जाएं, अगर गांव में जाऊं, तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं लोग? देखिए, भारत की तो ये स्थिति है कि अभी ज़्यादा इसकी जागरूकता बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न देश जितने हैं, बहुत कम जागरूकता है। लेकिन हम बात करें कि ऐसी मुहिम जो हो रही हैं, जैसे प्राइड मार्चेस हो गई या जेंडर इंक्लूसिविटी जो वेबिनार्स होते हैं, इन सब से यही फैलता है अवेयरनेस। जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो भी कई पिक्चर बनाने की कोशिश करती है ताकि बहुत जनता को, आम जनता को पता लगे कि ये भी बहुत एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है और ये कुछ अलग नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जैसे बहुत गाँवों में माना जाता है कि इसको ये बीमारी है, इसको डॉक्टर से ठीक करा देते हैं। ये बीमारी नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। लोग जो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही उनको बड़ा होना चाहिए और बस यही सपोर्ट करने के लिए हमने ये आज आपने एक बड़ी अच्छी बात की भी, लोग गांव में हैं, गांव में एक इसके आगे और प्रॉब्लम है भी, अगर माँ बाप को पता भी है तो उस बच्चे की शादी कर देते हैं, तो उसके साथ आगे के परिवार भी ख़राब नहीं हो जाते? बिल्कुल सही बात है। जब तक बंदा अपने आप से खुश नहीं है, अपने एक पहनावे में खुश नहीं है, तो वो आगे अपनी फैमिली को, अपने आगे बच्चों को कैसे खुश रखेगा? ऐसे कई होते हैं जो पैदा होते हैं एक अलग आइडेंटिटी के साथ, अपनी लाइफ जीते हैं अलग आइडेंटिटी के साथ और वैसे ही मर जाते हैं। तो उनका वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन फंडामेंटल राइट है, वो कहीं ना कहीं ऐसे रह जाता है क्योंकि सोसाइटी बहुत एक नेगेटिव प्रेशर डालती है उस इंडिविजुअल पर, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए ही ये अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि लोग अपने अंदर ही घुट के ना मर जाएं, वो अपने आप को बाहर निकालें, वो सोचें कि मैं ये हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा सोसाइटी के सामने। ਇਹਨੂੰ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਡ RG ਐਨੂਅਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਗਨੂਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ RG ਐਨੂਅਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ IDIA ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ IDIA ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ IDIA ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ IDIA ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। IDIA ਹੈਗਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਬਾਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸੈਸ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ RG ਐਨੂਅਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਲੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, है ना। तो वो फिर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ IDIA ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ IDIA ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਰੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ IDIA ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।